ریپ یعنی زنا بالجبر ایک ایسا جرم جس میں ہمارے ہاں اکثر نہ تو ملزموں کو سزا مل پاتی ہے اور نہ ہی اس کا شکار ہونے والی لڑکی کو ہمارے معاشرے میں جگہ. ہمارے ہاں اکثر ایسی مظلوم خواتین کے پاس خاموشی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بچ پاتا. پاکستان میں روز بروز زنا بالجبر کے بڑھتے ہوئے مقدمات، ان کی اقسام اور وجوہات کیا ہیں؟ ماضی قریب میں کل عدم قرار دیے گئے قانون حدود زنا آرڈیننس نے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے، اور کیا اس قانون کے خاتمے سے کوئی فرق بھی پڑا ہے یا یہ ظلم آج بھی اسی طرح جاری ہے؟ عورت کے خلاف ہونے والے اس ظلم میں کون اور کیسے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس بے رحم تذلیل میں لڑکی کے گھر والوں سے لے کر پنچایتیں، وڈیرے اور صدیوں سے مقدس مانے جانے والے محرم رشتے کس حد تک شامل ہو سکتے ہیں؟ میں سوچتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے پیار کرے گا ساری زندگی. اپنی ماں، میری ماں تو نہیں ہے، باپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کے محافظ ہماری پولیس اور عدالتیں انصاف کی فراہمی میں کس صف میں کھڑی نظر آتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدنامی کے اس داغ کو گھریلو جھگڑوں اور دشمنیوں میں مخالفین کے خلاف ایک قانونی ہتھیار بنا کر بھی استعمال کیا جانے لگا ہے؟ زنا اور زنا بالجبر کے فرق کو واضح کرتی ہماری اس تفتیش میں آپ ایک ایسے گروہ سے بھی مل پائیں گے جو پولیس افسروں کی سرپرستی میں چلتا تھا. ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ. ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ. ریپ ہمارے ہاں معمول میں ہونے والا ایک ایسا جرم جس میں نہ صرف مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مظلومین کے لیے حصول انصاف اس سے بھی مشکل اور کٹھن مرحلہ بن کر سامنے آتا ہے. ہمارے ملک میں زنا بالجبر کے بڑھتے ہوئے واقعات کی کئی وجوہات ہیں جن کا ہم باری باری تجزیہ اور تفتیش کرنے جا رہے ہیں. ریپ یعنی زنا بالجبر، عام طور پر یہ لفظ سن کر ہی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، مگر ہمارے ہاں تو ایسے واقعات بھی بھرے پڑے ہیں کہ روح کانپ جائے. عموماً بچیاں ریپ ہوتی ہیں گھر میں ہی، مطلب کسی رشتہ دار ہی سے وہ ریپ ہوتی ہیں. اسکولوں میں مطلب بہت دیکھا ہے کہ اسکول ماسٹر ہوتے ہیں، مدرسوں میں دیکھا ہے، وہاں تو بچے بھی ریپ ہو جاتے ہیں. یہ کرائم ہے، ایک جرم ہے جو ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے. اب یہ کہ اس کے اوپر سے بے نقابی میڈیا کے ذریعے زیادہ ہو جاتی ہے. نصرت بی بی لاہور کے کچے مکان میں اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو زمانے کی سختیوں سے بچانے والی ایک ایسی ماں جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر کا اصل صاحبان یعنی شوہر اور ان کا واحد کفیل ہی رشتوں کی پامالی جیسی حد کو چھو جائے گا. اس کے لیے انصاف اپنوں ہی سے جنگ کرنے کے مترادف ہوگا. نصرت کا شوہر اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں نہ صرف اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ امید سے بھی ہو گئی. وہ تو جنگلی، بالکل جنگلیوں جیسی اس نے حرکت کی. میں نہیں سمجھ سکتی ان کو اپنا باپ. ایسا باپ جو بیٹی کے ساتھ کرے گا، ایسی بیٹیاں کیسے اپنے باپ پہ یقین کرے گی؟ کوئی بیٹی نہیں اپنے باپ پر بھروسہ کرے گی. کسی بیٹی کا نہیں یقین رہے گا آج کل کے باپ پر. اپنے گھر سے جنگ کا آغاز کرنے والی نصرت کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گھر کی 4 دیواری سے باہر اس کے لیے مشکلات کا ایک اور سمندر موجود ہے. یہی بیٹیاں جو رب کی رحمت بن کے آتی، آج میرے لیے یہ بیٹیاں عذاب بن گئی. انصاف کے حصول میں جہاں نصرت کے گھر والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، وہیں اس کو ہمارے قانون کے محافظ، پولیس سمیت میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے حوالے سے کچھ ایسے شکوے ہیں جو ان قانونی محافظوں کے خلاف بھی کئی سوالات کو کھڑا کر سکتے ہیں. میں یہی سوچ کے گھر بیٹھ گئی ہوں، میرا کچھ نہیں بننا، نہ عدالت کی طرف سے کچھ میرا بن رہا ہے اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے کچھ بن رہا ہے. لوگ کہتے تو ہیں ہم مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر ادارے میں گئی ہوں. پولیس والوں کو پیٹرول کے پیسے دو، 1000 دو، 500 دو، آگے پھر وکیل
हमें इतने 3,000 दे दें, हमें 5,000 दे दें, शर्म नहीं आती मांगते हुए कि वो गरीब हैं इसलिए हमारे पास आए हैं कि हम उनकी हेल्प करें बजाय उसके हमसे पैसे मांगते हैं। कई माह से अदालतों, वकीलों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती नुसरत को तो इंसाफ के फराहमी समेत अपने किसी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रही, मगर अपनों के खिलाफ होने वाले जुल्म का ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक ज़िना बिल जब्र के मुतअद्दिद वाकयात में घर वालों समेत सगे रिश्तेदारों के शामिल होने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे वाकयात में शिकार बनने वाली ज्यादातर कम उम्र बच्चियां और बच्चे भी शामिल होते हैं। फैमिली मेंबर्स ही अपनी नीसेस को, बच्चियों को रेप करते हैं विद इन द फैमिली, जहाँ समझा जाता है कि बहुत ही एक हिफाजत होती है। कोई ऐसा इंसान होता है जो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता है, वालिद होता है या कोई चचा या मामा होता है, तो वो उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि जो विक्टिम होता है वो एक बहुत इंटिमिडेट हो जाता है। Incidents of rape are probably quite a bit in our society because of the frustration that we have. फिर उसके बाद मीडिया की और फिर जो kinds of images that we see on television, people are frustrated. अब तो आप यकीन कीजिए कि गाँव के अंदर रेप्स के इंसिडेंट्स शहरों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इस बात का सबूत पेश करने के लिए अब हम आपको जिला कसूर के नवाही इलाके कंगनपुर लिए चलते हैं, जहां 6 साला मासूम बच्ची महजबीन के बूढ़े माँ बाप अपनी छोटी सी गुड़िया के खिलाफ होने वाली ज्यादती पर नोहा कुना है। महजबीन के सगे भाई आमिर ने न सिर्फ अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादती की बल्कि इसका गला दबाकर कत्ल भी कर डाला। उनके तस्वीरें नहीं बोलदियां कि जो उनके नाल तस्वीरें कमाल चोईयां ने, चूड़ियां टुटियां ने, ऐर बहन डिगे ने, आफरी पई सुजी पई लब्बी। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹ ਬਹਾਦਰ। शक ना हो जाने तक आमिर, जो खुद शादीशुदा और एक बच्ची का बाप भी है, मासूम बहन की छुपाई हुई लाश को अपने घर वालों के साथ मिलकर ढूंढता रहा और जैसे ही शक का रुख इसकी जानिब हुआ तो वो मौके से फरार हो गया। ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਦਾ, ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ नहीं आना। बाद में पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर आमिर हमारे मुआशरती रवैयों पर एक ऐसा सवालिया निशान छोड़ गया है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। महजबीन के वालिदैन अपनी बच्ची के मुजरिम को सजा दिलवाने पर आमादा नजर आते हैं, वो शायद इसलिए कि इनकी बच्ची भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗ ਲਾ ਤੇ ਸਾੜਾ ਮੈਨੂੰ हुकूमत इजाजत देवे, मैं इस कंगनपुर दे विच आग ला ते साड़ा। ज्यादती का निशाना बनने वाली महजबीन जैसी अक्सर बेटियों के वालिदैन हमारे यहाँ इंसाफ के हसूल की बजाय ऐसे इक़दाम के बाद आम तौर पर लोगों के तानों से बचने के लिए खामोश हो जाना ही इज्जत का मयार समझते हैं। सबसे पहले तो उसको फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस मिलती है कि ये केस थाने तक नहीं जाएगा, इज्जत का मसला है, शादी कहाँ पे होगी अगर इन केस शी इज़ अनमैरिड। लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए और यो फिर जो उसके पीछे एक पूरा लिटिगेशन का जो एक अंबार लगता है उससे बचने के लिए और अपनी बच्चियों को अदालतों में और थानों में जाने से रोकने के लिए जो इज़्ज़त वाले लोग हैं वो तो ये रिपोर्ट करते नहीं। मसावी हकूक के नाम पर हासिल किए गए हमारे मुल्क में बढ़ते हुए ज़िना बिल जब्र जैसे जालिमाना जुर्म के एदादो शुमार का जायज़ा लें तो साल 2009 और 2010 में पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद बिल तरतीब 928 और 937 है, जो कि साल 2008 में रिपोर्ट होने वाले 778 केसेस से 7% ज्यादा हैं। जबकि आज भी पाकिस्तान में ज़िना बिल जब्र के ऐसे मुकदमात की भरमार है जो थाने तक आने ही नहीं दिए जाते। FIR क्यों नहीं करवा रही हैं आप, मीडिया में क्यों नहीं आना चाह रही? तो वो एक जैसे सोशल प्रेशर था उनके ऊपर, और वो अपनी बेइज्जती की वजह से कि हमारी बेइज्जती होगी, हम इसको मीडिया में नहीं लाना चाह रहे, हम थाने में नहीं जा रहे। मुख्तलिफ सूबों में रिपोर्ट होने वाले केसेस को अदादो शुमार की कसौटी पर परखें तो सबसे हैरत अंगेज इजाफा पंजाब की सरजमीन पर देखने में आया है।
रिपोर्ट होने वाले 937 केसेस में से 741 का ताल्लुक सूबा पंजाब से है, जिनमें लाहौर सरे फहरिस्त। सूबा सिंध में रिपोर्टेड केसेस की तादाद 157 है। खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 6, जबकि बलूचिस्तान में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 5 है। तमाम किस्म के जो केसेस हैं वो सूबा पंजाब में ही पिछले 4 साल से जब से हम मॉनिटर कर रहे हैं, उससे पहले हम डेटा कलेक्ट नहीं करते थे, जस्ट उसको वैसे देखते थे कि कौन सा है, लेकिन अब तो बाकायदा हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें यही देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अब्डक्शन के केसेस आते हैं और दूसरे नंबर पे जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो रेप के केसेस हैं। यहाँ ये वाजे करना भी इंतहाई अहम है कि रिपोर्टेड केसेस में कमी का मतलब हरगिज़ ये ना लिया जाए कि दीगर तमाम इलाकों में ये जुर्म मौजूद नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इन इलाकों में ऐसे केसेस के हवाले से मजलूमीन की पुलिस तक रसाई ही ना हो। हमारे मुल्क में ज़िना बिल जब्र की बढ़ती हुई शरह के साथ साथ इसकी मुख्तलिफ अशकाल का सामने आना भी कोई बड़ी बात नहीं। गैंग रेप ज़िना बिल जब्र की वो शक्ल कि जिसमें एक से ज़ायद अफराद की जानिब से किसी औरत को ज़्यादती और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। गैंग रेप का जिक्र शुरू है तो पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मुख्तारा माई। मुख्तारा माई इन दिनों मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई मोजामीर वाला में एक शेल्टर होम भी चला रही हैं। इनके मुताबिक कई साल पहले जब इनको ज्यादती का निशाना बनाया गया, तब से लेकर आज तक इंसाफ की फराहमी में कोई बेहतरी नहीं आई। एक औरत के लिए आज भी सबसे बड़ा मसला इंसाफ की पहली सीढ़ी यानी पुलिस तफ्तीश है और यहीं वो हार मान जाती है। जब आप लोग थाने पे जाते हैं वही चीज़ें बार बार रिपीट, कैसे आपको पकड़ा गया, कैसे आपको नीचे गिराया गया, किसने आपको पकड़ा, किसने आपके साथ कैसे हो गया, ये चीज़ें बहुत तकलीफ दे होती हैं। ये रिक्वायरमेंट है जी, वी हैव टू आस्क क्वेश्चन। सवाल तो हमने करने हैं और कोई अच्छा सवाल नहीं करना, और वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसी से केस बनना है। गैंग रेप की ही एक और शिकार मीर हजारी मुजफ्फरगढ़ की नसीम माई है, जो महज शादी से इनकार करने पर अपने ही रिश्तेदारों की हवस का निशाना बनी। नसीम के मुताबिक इसका कज़न गुलाम मुर्तज़ा इससे शादी करना चाहता था। इसने इनकार किया तो वो असले के जोर पे इसको उठा कर ले गया। मुलजिम ने अपने 10 से 12 दोस्तों के साथ मिलकर इसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने 4 रोज बाद इसे बाजियाब कराया और मुख्तारा माई शेल्टर होम भिजवा दिया, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सारे मुजरम भाग गए, वह को हथे आए, वह को पकड़िया ने ब्याह को खुद फरार किया ने कि जो उन्होंने हाथ असला पुलिस उन्हें को डर गई है, पुलिस उन्हें कोई गल कैसी की थी। नसीम के मुताबिक इसके रिश्तेदार मुलजिम फरीक असर रसूख वाले हैं, सो उन्होंने इसके वालिद के खिलाफ डकैती का झूठा मुकदमा दायर करवा दिया, जबकि इस पूरे वाक़े पर पुलिस अब तक खामोश है। नसीम का बूढ़ा वालिद अपनी बेटी की इस हालत पर सिवाय पुलिस के सामने इल्तिजा करने के और कुछ नहीं कर सकता। बेशक में नाजायज ठक देवन नाजायज में न थी सी पी मां ओ भुगता दसा मां अपना हक मंगसा, क्यों जो सियासी लोग फरमाइश नाल थी गन मैं अल्लाह दा नाम गन के मैं ही चाहते आया। पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ के अवाम की जान और माल को इनके मुहाफिजों से भी खतरा लाहक रहता है। थानों हत्ता के सड़कों पर भी हमारी पुलिस हर रोज अवाम का कितना माल लूटती है ये तो किसी से छुपा नहीं, और जान की बात हो तो जाली पुलिस मुकाबले भी एक बड़ी हकीकत है। इसी तरह हमारी पुलिस किसी की इज्जत लूटने में भी पीछे नहीं रही। हाँ, ये दुरुस्त है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हमारी पुलिस बाज़ औक़ात खुद भी इस किस्म के मामलात में मुलव्वस नज़र आती है, जिसकी ताज़ा मिसाल लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मामूर थाना शादमान के 3 अहलकार हैं, जो नबीला नामी खातून के साथ मुबैना ज़ाती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जहाँ मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं, वहाँ इंसाफ की फराहमी कौन कर सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे मुल्क के कई छोटे और कुछ बड़े पुलिस अफसरान ने तो लोगों को ज़िना बिल जब्र के मुकदमात में फंसाने के लिए गैंग्स भी बना रखे हैं। ज़िना बिल जब्र के झूठे मुकदमात की हकीकत क्या है और पुलिस का इसमें क्या मुफाद, ये जानने के लिए हम अपने तफ्तीशी सफ़र को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले एक ब्रेक।